good morning everyone. Let us start today the new chapter, that is what MySQL functions. So today we are going to start with MySQL functions. These are the inbuilt functions which are made for some specific purpose, right? So of course जब function की बात आती है तो कुछ वो function value लेगा और कुछ value return करेगा, isn't it? So in MySQL functions also they take some value and returns a single value. They returns a single value. और functions के अंदर आप जो भी pass करते हो, value passed to functions are known as arguments or parameters. So within the function, whatever you are passing, that is called arguments or parameters. So let me tell you one thing first, कि functions जो SQL में होते हैं, that is what they are of two types. Functions in SQL can be categorized as two types functions. एक होता है हमारे पास, there are two types of functions, right? Number one is your single row function. ठीक है, single row function. And number two is what? Your multiple row function. Multiple row function या फिर हम इसको aggregate functions भी बोलते हैं. We also call it as an aggregate function, right? So as the name says, single row function का मतलब क्या हुआ? जो single हर row पर काम कर रहे हो, right? You can work this function and you can use this function in your tables also. So if the function is working on each and individual row, that is called single row function, right? And those which works on group of rows, यानी कि multiple rows पे अगर काम कर रहे हैं तो उनको हम multiple row function, aggregate function या group functions भी बोलते हैं, right? So this is what about the you can say introduction about function. Two functions are what? These are what we are going to study. They are inbuilt function, right? And they can be categorized into two parts. One is single row and second is what? Multiple row. Single row का मतलब which works on individual rows of table, right? And those functions which can work on multiple rows, those are called multiple row या aggregate function या group functions, right? So now we are going to start with single row function. ठीक है, single row function जैसे अभी हमने पढ़ा कि it will work on each and every row of the table, then it is called single row function, right? So there are various categories within a single row function, right? This is the categories of single row function. तो तीन तरह के functions पढ़ेंगे हम, string functions, mathematical function, and the next is date and time function. ठीक है, so let us start today with string functions. So what are string functions? String functions are basically what? They takes the, ये देखो ये function का नाम है और ये within the bracket whatever you will write that is an argument, right? तो string function हमेशा argument as a आपका जैसे character भी ले सकता है, आपका number भी ले रहा, देख रहे हो number ले रहा है यहाँ पर है ना, it can take an argument as a number, right? तो नंबर आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, आपका स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, यानी कि फंक्शन के विद इन द आर्ग्यूमेंट आप क्या पास कर सकते हो? आप या तो स्ट्रिंग पास कर सकते हो या नंबर्स पास कर सकते हो, बट द आउटपुट, अभी बात हुई थी ना, फंक्शन वैल्यू लेता है और कुछ रिटर्न करता है, तो जो रिटर्न करेगा इट इज व्हाट? इट इज अ स्ट्रिंग. सो यू कैन सी इट कैन बी स्ट्रिंग आल्सो, इट कैन बी नंबर आल्सो. कैसे इट कैन बी स्ट्रिंग, कैसे इट कैन बी नंबर, तो हम देखते हैं. So पहला फंक्शन पढ़ते हैं यहाँ पर, that is the char function. तो ये क्या करता है? returns the character of given ASCII code. आपका जो भी ASCII कोड आपको पता ही है ना, A का 65, B का 66, small a का 97. So whatever the character, whatever the number you will write here, it will give you the character value of that. यानी कि ASCII code of that. ठीक है, अगर ASCII कोड जो भी आपने लिखा है given ASCII कोड, उसका जो वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देगा, यानी कि कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर देगा. Now next is concat function. Concat function क्या होता है? It returns concatenated string. Concatenated का मतलब होता है कि combine करके. Let me show you how it does it combines. मैंने कहा कि suppose I will use separately also, I will use on the table also. तो मैंने लिखा select concat, right? If I am writing Sudha and I am writing Shrivastava. So when I am writing concat,
सो व्हाट हैपेंस, जस्ट चेक इट, इट इज जस्ट कॉन्कैटिनेटिंग, जोड़ दिया इन दोनों को, कोई स्पेस नहीं है, आप देख रहे हो, नो स्पेस इज देयर, ठीक है। सो इट इज जस्ट कॉन्कैटिनेटिंग द स्ट्रिंग्स। आपने 2 स्ट्रिंग पास किए, 2 करने हैं, ज्यादा करने हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप सपोज मैंने ये लिखा, 3 स्ट्रिंग लिखे, तो इट विल जस्ट कॉन्कैटिनेट। अच्छा, क्या यहाँ पर मैं नंबर लिख सकती हूँ क्या? लेट मी चेक द नंबर ऑल्सो, राइट। सो वॉट एवर यू विल राइट, इट विल जस्ट कॉन्कैटिनेट, सिर्फ जोड़ के लिख देगा। अब बात करते हैं क्या टेबल पे कैसे वर्क करेंगे। तो अभी मेरे पास टेबल एक खुला हुआ था, ग्रेजुएट, राइट। लेट मी टेक द ग्रेजुएट टेबल, ये ग्रेजुएट है। अगर मैंने लिखा सेलेक्ट कॉन्कैट नेम, ठीक है, सॉरी कॉन्कैट, और इसके विद इन द ब्रैकेट लेट मी पुट व्हाट नेम को कॉन्कैट करना चाहती हूँ, और मैं क्या लिखना चाहती हूँ, स्टाइपेंड को कॉन्कैट करना चाहती हूँ। सो इट विल जस्ट कॉन्कैट दीज। और जब आप टेबल से ले रहे हो तो आपको फॉर्म लिखना जरूरी है, क्योंकि आप टेबल से लेना चाह रहे हो, अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा, राइट। So select name, concat name, stipend from graduate. So it will just concat. Can you see? Current 400, Raj 450, and मतलब स्पेस भी नहीं आएगा, जैसे लिखा आपने वो बस जोड़ के लिख देगा, सीधी सी बात। कॉन्टैक्ट का मतलब ये, right? So now next function is what, lower या फिर L case. As the name says, lower means what? It returns the string in small case letter, right? Smaller case में कर देगा। तो अभी आपके पास सारे नेम जो है that is in the capital form. So let us check with L case. So I said select L case, right? और मैंने यहाँ पर suppose I'm writing my name here. Just I want to show you both the way. So this is what I have written. तो देखो सब कुछ small में हो गया, ठीक है। What if it is in small already? So not an issue, वैसे के वैसे ही रहेगा, कोई changes नहीं होंगे, है ना। If it is in small तो कुछ भी changes नहीं होगा, वैसे के वैसे ही रहेगा। So that is what L case, या फिर आप इसको lower कुछ भी लिख सकते हो, right? So let me use here now lower, and I want to make name as a lower, right? अब आप टेबल से ले रहे हो नेम, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम और टेबल का नाम। So that is what it will make all the names as a smaller one. You can see सभी कैपिटल में थे, now it is in small case, right? Don't ever write this column name in quotes. Be careful. Don't ever write name, मतलब whatever the column name you are giving, that is in quotes. Don't write. Otherwise क्या होने वाला है, देखो हमेशा नेम 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 आ गया, राइट। तो ये इसको स्ट्रिंग ले रहा है, तो आपको कॉलम देना, तो आप कॉलम का नाम लिख रहे हो, तो डोंट पुट इट इन कोट्स, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। सिंपल। देन अपर इज आल्सो सेम, अपर क्या करेगा, उल्टा काम करता है, अपर केस में कर देगा। तो लेट मी राइट अपर, तो नेम अगेन आई पुट नेम इन कोट्स, तो इट्स स्ट्रिंग ले रहा है, so it is going to give you that name like this, right? If I will put only name, ठीक है, only name means I am taking the column name, तो अब क्या करेगा, वो तो पहले से मेरा कैपिटल है, नॉट एन इशू, इट विल गिव यू द कैपिटल ओनली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू केस या अपर या फिर लोअर केस और एल केस। कैपिटल है तो स्मॉल में कर देगा, लोअर नहीं है स्मॉल में ही है तो एज इट इज छोड़ देगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट लोअर एंड अपर। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सबस्ट्रिंग। See, this is an important function. Just check it. Substring function क्या करता है? It returns n character of string s beginning from position. यहाँ पे 3 चीजें हैं आपके आर्ग्यूमेंट में। सबस्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट में 3 चीजें हैं। फर्स्ट इज योर सबस्ट्रिंग, मतलब सारा फर्स्ट आपका स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर पोजीशन देखिए, पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करना है, और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब उस सपोज मैं बात करती हूँ कि अगर मैंने कहा select sub str, right? Or if I say hello everyone, right? And if I say 4, तो अब मैंने मेरा कहने का मतलब 4th पोजीशन से, ठीक है, 4th पोजीशन से मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, मैंने कहा 7 कैरेक्टर चाहिए, राइट। सो इट मींस व्हाट, इट विल स्टार्ट काउंटिंग द पोजीशन 1 2 3 4, ये रहा 4, राइट। तो 4 से 7, तो आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाइए एंड सी
4 से 7, 1 2 3 4, LO 1 2 और ये स्पेस 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7. So LOEVER, low ever, right? So this is what substring function is. This sub-str function can be called with substring also. आपने ये sub-str लिखा है ना, अगर आप यहाँ पे इसको substring भी लिखते हैं, it will work same. You can check if I will write here substring. ठीक है, कोई इशू नहीं है, सेम काम करता. और सब str, सब string, और एक चीज और देखो यहाँ पर we can put mid also. So these three functions are working same, right? So mid, sub str, substring, this function is same. क्या करता है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स आपके स्ट्रिंग है, ये पोजीशन बताता है और ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है, कितने कैरेक्टर्स आपने लेने हैं. अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर ये मिस कर देती हूँ, इफ आई एम नॉट पुटिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देन इट इज गोइंग टू गिव मी ऑल, फोर्थ से सारे. ठीक है, फोर्थ से सारे. अच्छा, व्हाट हैपेंड इफ आई वांट टू मिस दिस आल्सो, कैन आई मिस दिस आल्सो? सो इट इज गोइंग टू गिव यू एरर. यानी कि एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट आपके जरूर होने चाहिए तो ये देगा, अदरवाइज नहीं देगा. 2 आर्ग्यूमेंट जरूर होने चाहिए, नहीं तो ये आपको एरर देगा. सुन रहे हो आप? अच्छा, व्हाट इफ आई से, यहाँ पर मैंने लिखा 4 और -4, राइट? जस्ट चेक इट, व्हाट इज हैपनिंग, इज इट गिविंग एनीथिंग? इट इज गिविंग यू ब्लैंक. एरर नहीं दे रहा है, लेकिन इट इज गिविंग यू ब्लैंक. सपोज आई सेड -2, इट इज गिविंग यू ब्लैंक. तो नेगेटिव आप लिखोगे तो ऐसे ही देगा. अच्छा एक चीज और काम करते हैं, यहाँ पर मैं -4 लिख रही हूँ, राइट? एंड आई सेड 2. So now you check what is happening here. -4 का मतलब क्या है, पीछे से पोजीशन. तो ये हो गई 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4. तो ये आपका -4 है और -4 से कितने लेने हैं, 2. तो Y और O, 2 कैरेक्टर्स आपके आ गए. ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये नहीं देते पोजीशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो -4 से सारे आ जाते, YONE, राइट? सो नेगेटिव का मतलब पीछे से आपको काउंट करना है. ठीक है, इफ आई एम राइटिंग -10, सो व्हाट विल हैपन, पीछे से -10 काउंट करिए, कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि O पर आ रहा है आपका 10. सो इट इज गोइंग टू गिव मी O से लेके एवरीवन. वो अलग बात है कि आप यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स रीड कराना चाहते हो. 4 आपने कहा मेरे को 4 कराना है, सो 4 कैरेक्टर कैन बी रीड फ्रॉम. सो दिस इज मिड या फिर सबस्ट्रिंग या फिर सब str फंक्शन. So that can be used with a negative sign also. और मैंने बात की, अगर मैं नेगेटिव दूंगी तो कुछ भी नहीं होने वाला, फिर आंसर मेरा क्या आएगा, ब्लैंक. एरर नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है. So it can be asked in any of the way. So you should be able to answer. Okay. Now the next function is your L trim. तो trim, L trim, R trim, तीनों का काम क्या है देख लेते हैं. L का मतलब है removes leading space. What is the leading मतलब, अगर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, L मतलब लेफ्ट हैंड साइड से. तो अगर आप नोट करोगे तो ये एप्पल के तो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी स्पेस है, तो जब आउटपुट देगा तो ये स्पेस हट जाएगा, है ना? ऐसे ही आर ट्रिम होता है. आर ट्रिम क्या करता है, अगर राइट हैंड साइड में स्पेस है तो वो हटा देता है. ठीक है, एंड देन देयर इज अ ट्रिम फंक्शन व्हिच रिमूव्स ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस. आगे पीछे जो भी स्पेस हो लेफ्ट राइट में, वो सारे हटा देगा. सो लेट अस सी द एग्जांपल. सो इफ आई से see you can work with this, we can work these functions on table also. तो एक बार सब str आप देख लो, उस पे भी मैंने कहा select star from graduate, right, because the output can be come from the table also. So if I say कि मुझे last के, I said last के 2 characters display करने हर नाम के, तो you know last के 2 characters मतलब आप क्या लगाओगे, substring लगाओगे, right? लास्ट के 2 कैरेक्टर मतलब आप पीछे से -2 ले लीजिए, तो अपने आप कहाँ पे आ जाओगे, पीछे के 2, पीछे से सेकंड कैरेक्टर पे. ठीक है, और कितने कैरेक्टर चाहिए आपको, 2 कैरेक्टर चाहिए, तो 2 लिख दिया आपने. और किसका चाहिए ये तो बताओ. तो आपने कहा मुझे किसके कॉलम का चाहिए, नेम कॉलम का चाहिए. सो -2 मतलब पीछे से कितने कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर. अभी हम और एक फंक्शन करेंगे, आप उससे भी यूज कर पाओगे, बट आई वांट टू शो यू ऑल दिस फंक्शंस.
सो नेम मैंने पीछे से 2 लिया, 2 कैरेक्टर, और ऑफ कोर्स क्योंकि आप टेबल में काम कर रहे हो तो यू नीड टू गिव फ्रॉम और टेबल का नाम, ठीक है ना। तो यू कैन सी लास्ट के 2 कैरेक्टर आ रहे हैं, करण, राज, है ना। तो दिस इज व्हाट द सबस्ट्रिंग फंक्शन वर्क लाइक। मैंने कहा नहीं मुझे फर्स्ट के 3 कैरेक्टर चाहिए या सेकंड से 3 कैरेक्टर चाहिए, तो आप क्या लिखते हैं, सेलेक्ट सबस्ट्रिंग सेकंड से 3 कैरेक्टर। तो ये रहा सेकंड पोजीशन। कितने कैरेक्टर चाहिए, मैंने कहा 3 कैरेक्टर चाहिए, चलो जी 3 कैरेक्टर हो गए, चलिए ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और आपको आउटपुट ऐसे लिखना है, ठीक है। सपोज ऐसे लिखा होता फ्रॉम, यहाँ पे स्टाइपेंड लिखा होता, फिर आप क्या करते, कैसे टेबल बनाएंगे देख लीजिए आप। टेबल बनाने का ऐसे टेबल बनाएंगे, जो यहाँ लिखा है एज इट इज उतार दो, फिर ये स्टाइपेंड कॉलम, इसका जो आंसर आएगा वो लिखो, और जो इसका है वो लिखिए। और देखो हर रो पे इंडिविजुअली काम कर रहा है, इसलिए ये सिंगल रो फंक्शन है, because it is working on each and every row individually, that is why it is called single row function. Right, now let me come to the trim. तो मैंने बात की थी, सपोज एल ट्रिम हम बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के स्पेस दिया है, राइट, हेलो एवरीवन, एंड आई वांट टू गिव स्पेस हियर आल्सो, ठीक है ना। और यहाँ लगा दिया मैंने ऐसे, तो स्पेस आगे भी है पीछे भी है, और सेमीकोलन लगाना है। एंड यू कैन चेक ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, आप देख रहे होगे आगे वाला स्पेस हट गया है ना, आगे वाला आपका स्पेस हट गया। अगर आप आर्ट ट्रिम करोगे तो क्या होगा, राइट वाला स्पेस आपका हटेगा, देख लीजिए, ठीक है। ये स्पेस आपको शायद यहाँ नजर आ रहा, यहाँ नजर ना भी आ रहा हो, बट यहाँ यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि स्पेस इज स्टिल देयर, राइट हैंड साइड वाला स्पेस गया है बट लेफ्ट हैंड वाला अभी भी है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इसको सिर्फ ट्रिम कर देते तो क्या होता, दोनों तरफ के स्पेसेस चले जाते हैं आपके, तो आप देख सकते हो ना, नो स्पेसेस दिया। तो लीडिंग और ट्रेलिंग, लीडिंग मतलब आगे वाला, ट्रेलिंग मतलब पीछे वाला, और यू कैन से लेफ्ट और राइट, ठीक है। ट्रिम मतलब सारे स्पेसेस आगे या पीछे जो भी है सब स्पेसेस को हटा देगा। सो दिस इज एल ट्रिम एंड आर ट्रिम ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन। तो एल ट्रिम और आर ट्रिम आपने पढ़ लिया। नाउ लेट अस गो विद इन एसटीआर। ये इन एसटीआर फंक्शन और सब स्ट्रिंग, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अलग सा है, अदरवाइज रेस्ट इज इजी। सो लेट अस सी इन एसटीआर। तो इन एसटीआर क्या करता है, इन एसटीआर बेसिकली सर्च करता है। क्या सर्च करता है, देखो सपोज मैंने कहा इन एसटीआर हेलो एवरीवन, ठीक है। एक काम करना है मुझे, यहाँ पर ढूंढना है, क्या ढूंढना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ना ओ ढूंढना है, ओ इन एसटीआर मतलब स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग ढूंढना है मुझे, यहाँ पर किस पोजीशन पे है। सो इट रिटर्न्स एक्चुअली द पोजीशन, राइट। अब बात आती है कि ओ तो यहाँ पर ये भी है, यहाँ भी है, कौन सा ओ दिखाएगा, जस्ट चेक इट। सो इट इज गोइंग टू शो यू फर्स्ट अकरेंस ऑफ ओ। तो फर्स्ट बार ओ कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, देखो पोजीशन यहाँ पर माइनस से 1 से 0 से नहीं स्टार्ट होती पोजीशन, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होती है। जैसे पाइथन में आप 0 से करते थे, यहाँ 1 से करिए। So 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 5 पोजिशन, ठीक है ना। So this is what 5. So this is how you can search the position of the string, right? और बाई चांस अगर ना हो, बाई चांस अगर ना हो, सपोज मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ जो है नहीं, तो let it be anything which is not there, z, right? So you can see z is not there in the string, so it is returning 0. ठीक है, अगर होगा तो पोजीशन दिखाएगा पहली बार जहां है, ठीक है, और नहीं होगा तो क्या दिखाएगा, आपको दिखाएगा 0 कि इट इज नॉट देयर। तो 0 का मतलब है कि नहीं, राइट। सो दिस इज व्हाट योर इन एसटीआर फंक्शन, और आप इसको टेबल पे भी यूज कर सकते हो। मैंने कहा सिलेक्ट इन एसटीआर, और मैंने कहा नेम में आप मुझे ना ए ढूंढ के दिखाइए कहाँ पर है, ठीक है। नेम में ए ढूंढ के दिखाइए किधर है, तो मैंने कहा नेम ए फ्रॉम ग्रेजुएट। तो आप नेम में ए ढूंढ रहे हो कहाँ कहाँ पर है, देखो अब जिसमें होगा वो तो पोजीशन बता रहा है, जिसमें नहीं है वो 0 दिखा रहा है, ठीक है। आप एक बार चेक करना चाहते हो तो यू कैन चेक द टेबल ऑल्सो। नाउ चेक इट, करण में ए कहाँ पर है, सेकेंड पोजीशन पे ही है ना, दूसरे की बात नहीं हो रही, फर्स्ट वाला ही। राज में सेकेंड पे, दीप में है ही नहीं इसलिए 0। फिर ऐसे दिव्या में ए लास्ट में है, 5th पोजीशन पे है, गौरव में ए,
सेकेंड पोजिशन पे ही आ गया है ए, राइट. सो दिस इज हाउ इट विल गिव यू द पोजिशन. इट रिटर्न्स द पोजिशन, फर्स्ट अकरेंस, पहली बार कहाँ आ रहा है, ठीक है, वो आपको दिखाएगा. अच्छा, ऐसा नहीं कि एक ही कैरेक्टर को आप सर्च कर सकते हो, आप चाहते हो तो पूरा, मतलब एक वर्ड को अगर आप सर्च करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते थे. सपोज मैंने कहा कि मुझे ना आई वॉन्ट, सपोज इसमें बात करते सब्जेक्ट में, मुझे सर्च करना है आई फिजिक्स, मुझे चाहिए ICS चाहिए. ICS कौन से पोजीशन, ठीक है. सेलेक्ट इन STR और सब्जेक्ट, और मुझे क्या चाहिए था भाई, ICS चाहिए, ठीक है ना, फ्रॉम ग्रेजुएट, ठीक है. तो आप देखो ICS जहां जहां है सिर्फ फिजिक्स में ही है ना, तो इट इज गोइंग टू गिव मी 5 राइट. और देखो नल वाले में कुछ नहीं दिखा रहा, नल है तो नल ही दिखाएगा, क्योंकि नल से आप कोई कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, राइट. अच्छा, एक चीज और याद आया मुझे, अगर नल से बात हो रही है तो सपोज मैं स्टाइपेंड में ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है, 500 आई वांट टू ऐड. सो व्हाट इज, या 200 आई वांट टू ऐड, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टाइपेंड प्लस 200 फ्रॉम ग्रेजुएट. सी व्हाट विल हैपन, सब में जिनमें था उनमें 200 ऐड हो गया, बट नल वाले में कुछ भी ऐड नहीं होता, ठीक है. नल में ना तो आप कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है, ना माइनस कर सकते हो, ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते. यू कैन चेक विथ मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो. तो सपोज मैं यहाँ पर स्टाइपेंड को 200 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, so let us stipend into 200. You can see null is as it is, right. तो नल ऐसे के ऐसे ही रहेगा. नल के साथ ना तो आप कुछ ऐड करेंगे, ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ना डिवाइड कर पाएंगे, कोई कैलकुलेशन नल से नहीं होती, क्योंकि आपको पता है दिस इज नीदर अ स्ट्रिंग नॉर अ डिजिट, ठीक है बेटा. सो दिस इज व्हाट इन str फंक्शन. नाउ लेट अस चेक लेंथ फंक्शन. तो लेंथ आप लेंथ तो जरूर करा होगा आपने पहले, बट हियर इट इज नॉट लेंथ, इट इज लेंथ. तो अगर आप, मैं सब में सपोज मैंने नेम का लेंथ निकालना है सबका, तो मैंने लिखा सिलेक्ट लेंथ नेम फ्रॉम ग्रेजुएट. तो अब क्या हो रहा है, ये हर एक का लेंथ निकाल के आपको दे देगा. देख लो आप, हर नेम का इट विल गिव यू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, इट टेक्स एन आर्गुमेंट एज अ स्ट्रिंग और एज अ नंबर भी ले लेता है, स्ट्रिंग भी ले लेता है, बट इट विल रिटर्न व्हाट, इट विल रिटर्न योर string as well as number, ठीक है ना. so this is what length function do. now there is one more function called left. अब left क्या कर रहा है, left में आपको मैंने एक चीज अभी बताई थी कि अगर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मैंने आपको बोला था कि लास्ट के 2 के चाहिए, लास्ट के 3 चाहिए, तो लेफ्ट कौन सा साइड होता है आपका, लेफ्ट वाला साइड. देखो आप जहां बैठे हो लेफ्ट साइड. सो अगर इफ आई वांट टू प्रिंट 2 कैरेक्टर्स, तो मैंने लिखा 2, ठीक है, और सेमीकोलन ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग फ्रॉम द टेबल. हो गया लेफ्ट. जैसे मैंने आपसे पूछा था कि मुझे राइट के 2 चाहिए, तो आप लेफ्ट सब स्टेयर यूज करने की बजाय यू कुड हैव यूज्ड राइट आल्सो, है ना, लास्ट के 2 कैरेक्टर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट लेफ्ट एंड दिस इज व्हाट राइट. व्हाट इफ आई डोंट गिव एनी लेंथ, व्हाट इफ आई डोंट गिव एनी लेंथ, so it will not accept. तो कहने का मतलब ये 2 चीजें लेगा ही लेगा, आपका एक स्ट्रिंग और एक उसका कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको रिटर्न करने, 2, 4, 6. so you need to mention. अच्छा, what happened if I give more than the character what is there. suppose यहाँ पर मेरे पास 5 कैरेक्टर्स का है, if I write 6 then what happens, doesn't issue. राइट से 6, ठीक है, राइट से 6, so 1 2 3 4 5 6 नहीं है तो कोई बात नहीं. मैंने कहा राइट से 4, तो अब क्या करने वाला है ये, ठीक है, सीधा ही देगा, ऐसे नहीं सोचो कि उल्टा प्रिंट कर देगा. पीछे से 6 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर काउंट करेगा, 1 U D H A. So that is what left and right function in MySQL.